right? So today we will be discussing some more questions of first order, the partial derivatives of function of 2 variables or 3 variables. And after that, we will start the concept of homogeneous function and Euler's theorem based on homogeneous function. So, yes, wait. In last class, we discussed the fundamental formulas of first order and second order partial derivatives, right? And corresponding evaluation of first order and second order partial derivatives of function of 2 variable. I hope you all revised the last classes so that we can move. Still students are joining. We are not punctual at all. Please try to be punctual. बाकी लोग जो टाइम पे आ रहे हैं 11:20 से यहाँ बैठे हैं, उनका भी तो टाइम वेस्ट होता है ना। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उस बात को ध्यान में रखिए कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 11:20 से लॉग इन हैं। So don't waste time of them. Please be punctual. Anyways, I think we should start now. Screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you very much. So this is the partial differentiation we have discussed. So no need to read it. This is the concept of partial differentiation when there are more than one independent variable. We have already discussed in last classes. Fundamental formula of first order partial derivatives we have already discussed. Higher order derivatives, or we can say second order partial derivatives. These are the notations of second order partial derivatives. And these are the fundamental formulas of second order partial derivatives. You can see. जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाया था, बनाना सिखाया था कि कैसे बनाया जाता है. Right? In last classes, fxx, fxy, fyx, fyy. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 95% केसेस में fyx एंड fxy बोथ आर इक्वल. मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा. इसको हम बाद में देखते हैं. पहले इस पॉइंट को देखिए, रिमार्क 2 को देखिए आप लोग. जस्ट लुक एट रिमार्क 2. द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इज इमटेरियल इन पार्शियल डिफरेंशिएशन. If the derivatives involved are continuous, then fxy is equal to fyx. मैंने आपको बताया था कि 95% केसेस में fxy is equal to fyx होता है. क्यों होता है? एक्चुअली जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे fxy या fyx, तो वो दोनों इक्वल होंगे. If first order partial derivatives are not continuous, in that case, fxy will not be equal to fyx. Okay, so write it down. Otherwise, no need to write down. It's mentioned here. If the derivatives involved are continuous, then fxy is equal to fyx. मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव fx और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव fy अगर ये कॉन्टिन्यूस हैं, तो फिर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव fxy और fyx इक्वल होंगे. If first order partial derivatives fx and fy are not continuous, then second order partial derivatives
fxy and fyx are not equal. So I already told you that in your syllabus, most of the questions, not most of the questions, all questions follow this formula or this pattern or this property. आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें सब में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स बाय डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए आपको हमेशा fxy इज इक्वल टू fyx ही कंसिडर करना है. कीप इन माइंड. इन जनरल ये तब होता है जब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी डेरिवेशन आएगा, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बाय डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस होगा. वो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको हमेशा fxy इज इक्वल टू fyx यूज करना है. ऑलवेज यूज fxy इज इक्वल टू fyx. You can read it. For the functions considered in this chapter, these conditions are satisfied already. Therefore, the order of derivatives of differentiation is immaterial. That is, del square f upon del x del y is equal to del square f upon del y del x holds in general. I think you understood my point. Okay. Now come to this point. Just a minute, sir. Yes, please. Yes. Sir, ये वाला पार्ट समझ में आया एक्चुअली. डेल स्क्वायर एफ इज डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट. बेटा इतनी देर से आपको आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? हाँ सर, ये नेटवर्क पे. बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? इतना अच्छे से समझाया. देखिए, कैन यू हियर मी? यस सर, यस. I am saying that if first order partial derivatives fx and fy, if first order partial derivatives fx and fy are continuous, then fxy is equal to fyx. If first order partial derivatives fx and fy are not continuous, then fxy is not equal to fyx. In your syllabus and in your chapter, by default, fx and fy are continuous. So by default, fxy is equal to fyx. तो आपको ये ध्यान रखना है कि del square f upon del x del y is equal to del square f upon del y del x, और fxy is equal to fyx. Is it clear? हाँ सर, ओके. Okay. Now, if you want to calculate the higher order derivatives, for example, del cube u upon del x del y del z, del cube u upon del x del y del z, you can see very easily that it's a third order partial derivative. It's a third order partial derivative with respect to x, with respect to y, and with respect to z. तो आपको अगर क्वेश्चन में u फंक्शन गिवन है, if you are given function u which is a function of three variables x, y, z, और आपसे ये पूछा जाए कि कैलकुलेट कीजिए डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z, तो आप पहले किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे? आप पहले किसी के भी रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड दैट आपको सीक्वेंस मेंटेन करनी है. अगर आप पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर उसके बाद में y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे. अगर आप पहले z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे. ठीक है? क्योंकि आपको u का 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है. तो ईदर यू कैन फॉलो दिस सीक्वेंस x, then y with respect to y, then with respect to z, or you can follow this sequence with respect to z first, with respect to y,
and then with respect to zx. तो किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू z, और विथ रेस्पेक्ट टू z, विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू x. Right? Okay. Let's do one question. Find the first order partial differential coefficients of x cube plus x square y square plus y raised to the power 4 plus 3z cube minus xyz. So you can see very easily it's a function of three variables, x, y and z. So it's a function of three variables, f of x, y, x, y, z. And we have to find the first order partial derivatives. So it's quite simple question. We have to find del f upon del x, del f upon del y and del f upon del z. First order partial derivatives. This is the function. It's a function of three variables, f of x, y, z is equal to x cube plus x square y square plus y raised to the power 4 plus 3z cube minus xyz. तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप del f अपॉन del x फाइंड करना चाहते हैं तो y z को कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिएगा. If you want to evaluate del f upon del y, then you just assume x and z as constant. If you want to evaluate del f upon del z, then you just assume x and y as constants. क्योंकि अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y z को कांस्टेंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x z को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, और अगर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x y को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा. देखते हैं. सो del f upon del x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग y and z as constants. x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस x square y square is constant as it is, x square का differentiation 2x, so 2x y square, y raised to the power 4 का differentiation 0 because y is constant, 3z cube का differentiation 0 because z is constant, minus y and z both are constant, so yz as it is, and differentiation of x is 1. So del f upon del x will be 3x square plus 2xy square minus yz. Now del f upon del y, we are differentiating f with respect to y taking x and z constant. x constant है, x cube का differentiation 0 हो गया, x constant है, x square as it is, y square का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2y प्लस y रेज़ टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4y क्यूब प्लस 3z क्यूब का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज z इज कांस्टेंट, माइनस दिस माइनस x and z कांस्टेंट एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1. सिमिलरली del f upon del z. Any doubt in this question? No, sir. No, sir. No, sir. It's a quite simple question, but it's a question of three variables. Okay, one more question. If u is equal to e raised to the power xyz, then show that del cube u upon del x del y del z is equal to 1 plus 3xyz plus x square y square z square times of e raised to the power xyz. It's a very important question. If u is equal to e raised to the power xyz, then show that del cube u upon del x del y del z
तो देखिए डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड का क्या मतलब है कि हमें u को 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में और एक बार z के रेस्पेक्ट में। सीक्वेंस आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। You can differentiate first with respect to y, then with respect to x first, then y, then z, or you can choose the sequence z, y, x according to your choice. But keep in mind, if you are differentiating with respect to x partially, you have to assume y, z constants. If you are differentiating with respect to y partially, then you have to assume x and z constants. And if you are differentiating with respect to z partially, you have to assume x and y are constants. Keep in mind, because this is partial differentiation. देखिए u is equal to e raised to the power x y z. सबसे पहले इसने z के रेस्पेक्ट में किया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू z, उसके बाद में y के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद में z के x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ध्यान रखना x y को कांस्टेंट अज्यूम करना। ओके, तो फर्स्ट डेल u अपॉन डेल z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x y z का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x y z मल्टीप्लाइड विद बाय चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ x y z, x y कांस्टेंट हो गया, z का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। सो डेल u अपॉन डेल z इज x y e रेज टू द पावर x y z। Any doubt? No, sir. Any doubt in del u upon del z? Please ask me. No, sir. No, sir. Good. Now we will differentiate this del u upon del z with respect to y. So differentiating equation number 2 partially with respect to y. तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड, ऐसे लिखते हैं। Sir, got the answer. Yes or no? Yes, very good. So we are differentiating this del u upon del z with respect to y partially. So del upon del y of del u upon del z. It can also be written as, इसको क्लब करके लिखिए, del square u upon del y del z, del square u upon del y del z। ये तो हो गई नोटेशन की बात। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे राइट साइड। कीप इन माइंड वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, so we have to assume x and z constant. Keep in mind, तो ये जो x है ये तो कांस्टेंट हो गया, जस्ट लाइक ये x जो है ये तो ऐसे कांस्टेंट हो गया, x कांस्टेंट। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है y इंटू ई रेज टू द पावर एक्स वाई जेड का, और y इंटू ई रेज टू द पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे आप प्रोडक्ट रूल से विथ रेस्पेक्ट टू y। कीप इन माइंड विथ रेस्पेक्ट टू y, तो प्रोडक्ट रूल से देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले y एज इट इज, आपको मैं यही दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये x कॉमन है, ध्यान रखना, कांस्टेंट है। y एज इट इज, y एज इट इज, ये देखिए e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड, और मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो हो गया एक्स जेड, वो हो गया x और z। और ये एक्स स्क्वायर कहां से आया, ये जो बाहर कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई जेड ई रेज टू द पावर एक्स वाई जेड, प्लस ये x कांस्टेंट बाहर है, ये तो बाय डिफॉल्ट दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन 1, और ये x जो बाहर मल्टीप्लाई थे मल्टीप्लाई। एनी डाउट?
and del square u upon del y del z. No, sir. Very good. Now we will differentiate this del square u upon del y del z with respect to x. Now differentiating partially equation number 3 with respect to x. अब हम कर रहे हैं del square u upon del y del z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन. So del upon del x of del square u upon del y del z. यहाँ del z आएगा. तो क्लब करके इसको क्या नोटेट कर सकते हैं? del cube u upon del x del y del z. So this is del cube u upon del x del y del z. चलिए करते हैं. इस del स्क्वायर u upon del y del z का आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, टेकिंग y and z कांस्टेंट. कीप इन माइंड y और z को कांस्टेंट एज्यूम करके आपको x के रेस्पेक्ट में रखना है. तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन जो है ये प्रोडक्ट रूल से होगा, सेकंड वाला प्रोडक्ट रूल से होगा, लेकिन इस y z को कांस्टेंट एज्यूम कर लेना बस आप. तो फर्स्ट वाला देखिए पहले, e raised to the power x y z as it is, differentiation of x is 1 plus x as it is, differentiation of e raised to the power x y z is e raised to the power x y z, and differentiation of x y z with respect to x taking y and z constants y z. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरा हमारा फर्स्ट टर्म का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हो गया. अब इस पे आते हैं. इसमें yz तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है, इसलिए yz दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्रोडक्ट रूल में. ये देखिए ये yz यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये yz यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनको तो बाहर रखते हैं, तो प्रोडक्ट रूल से अंदर जो दो टर्म बनेंगे उन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके फाइन. नाउ प्रोडक्ट रूल से एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ई रेस टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, ई रेस टू द पावर एक्स वाई जेड एज इट इज. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, e raised to the power x y z का डिफरेंशिएशन e raised to the power x y z मल्टीप्लाइड विद x y z का डिफरेंशिएशन y z. इस सब को मिला के क्लब कर लीजिए, e raised to the power x y z कॉमन ले लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा. सिंपल कैलकुलेशन. एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. हेंस प्रूव. Any doubt, please? आप देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था. ये देखिए क्वेश्चन में, ये देखिए आ गया क्लियर. ये हमें प्रूफ करना है डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. ये हमने प्रूफ कर दिया. डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू e raised to the power x y z 1 plus 3x y z plus x square y square. Yes, please. Any doubt? No, sir. No doubt? Okay. Now, this was the partial differentiation concept. आई थिंक अब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इवैल्यूएट किया जाता है, एंड व्हाट आर द फंडामेंटल फॉर्मूलाज फॉर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन. फाइन.
Before proceed to next topic, please ask me if you have any doubt. Please ask me. Any question you want to ask? Okay. If there is no doubt, then we can move. ऐसा कोई है जिसे पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया हो? कैसे इवेल्युएट करते हैं? क्या फंडामेंटल फॉर्मूला है? फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई ऐसा है? प्लीज आस्क मी. Okay. Now can you see the screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this topic is very, very, very important. In fact, every question of partial differentiation must be from this topic. Homogeneous function. कोई बता सकता है homogeneous function क्या होता है? What is homogeneous function? Can anybody tell me by unmuting yourself? सर जिसका कोएफिशिएंट होमोजेनियस होता है. No. कोएफिशिएंट तो बेटा होमोजेनियस कभी होता ही नहीं है. कोएफिशिएंट तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है. देखिए सर nth टर्म और n-1th टर्म का रेशियो हमेशा सेम होता है. nth टर्म एंड n-1th टर्म का रेशियो सेम होता है. नो. देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है. आप अपनी कॉपी में एक फंक्शन लिखिए. यस, जस्ट नोट डाउन अ फंक्शन इन योर नोटबुक प्लीज. एवरीबडी एक फंक्शन लिखिए आप. f(x, y) is equal to x square minus 2xy plus 3y square. Everybody has noted down? I think noted down. fxy Yes, sir. is equal to x square minus 2xy plus 3y square. You can see it's a function of two variables because there are two independent variables here, x and y. Now tell me, what is the degree of first term? 2, Very good. What is the degree of second term? 1, No. 2, sir. 2, sir. 2, sir. Oh, हाँ sir, two. Yes, 2. The total degree will be counted. What is the degree of third term? 2. 2, sir. This is called homogeneous function. That's it. This is called homogeneous function. Yes, sir. If each and every term has total degree same, if each and every term has total degree same, that function is called homogeneous function. और वो जो डिग्री सेम होती है ना, उससे कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री. नाउ टेल मी, what is the degree of this fourth term? 0. 0. Absolutely. Now this function is a homogeneous or not? No, sir.
No, because this term has different degree. इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 0 है। अगर हर एक टर्म की टोटल डिग्री सेम होती है तो उसे होमोजीनियस फंक्शन बोला जाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. देखिए एन एक्सप्रेशन इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, a नॉट एक्स रेज टू द पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 y प्लस a2 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 एक्स रेज टू x इंटू y रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस an y रेज टू द पावर n। दिस इज एन एक्सप्रेशन। कोई मुझे बताएगा दिस फंक्शन इज ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स? This function is of how many variables? 2, sir. 2. X and 2, Y. 2, x and y. Very good, very good, very good, very good. This function is of 2 variables. Very good, बहुत अच्छे। This function is of 2 variables. अब मुझे बताइए a नॉट a1 a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 डॉट 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 an, ये जो a नॉट a1 a2 an माइनस 1 an है, ये क्या होते हैं? Constant. करेक्ट, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है टोटल? N है सर। करेक्ट। सेकेंड टर्म की टोटल डिग्री कितनी है? N minus 1 है सर। n minus n है 1. n। n है सॉरी ये प्लस 1 n है. अरे मुझे भी बोलने दो भाई। n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n। N, हाँ सर वही। थर्ड टर्म की टोटल डिग्री कितनी है? n. n minus 2 plus N है सर। N. n माइनस 2 प्लस 2 सारे टर्म की डिग्री n है। n। वेरी गुड। इस वाले टर्म की डिग्री भी n, इस वाले की। So this expression, which is a function of 2 variable, is a homogeneous function of degree n. This expression is a function of 2 variable, is a homogeneous function of degree n. Got it, everybody? Yes, sir. अब देखिए, अब एक्चुअली होगा क्या, आपको होमोजेनियस फंक्शन इतना इजी नहीं दिया जाएगा, ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है। तो हमें अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की फॉर्म में आ जाता है होमोजेनियस फंक्शन, उसे भी हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में से x की जो हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन ले लीजिए। इस पूरे एक्सप्रेशन में से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए या y की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले हम x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। सो जस्ट टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो हमने x रेज टू द पावर n कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बना, a नॉट प्लस a1 y अपॉन x, क्योंकि ये देखिए y है और यहां से x रेज टू द पावर n कॉमन ले लिया तो x रेज टू द पावर माइनस 1 बच गया, जो नीचे आके x हो गया। a2 x रेज टू द पावर n कॉमन आ गया, बच गया y स्क्वायर इंटू x रेज टू द पावर माइनस 2, दैट इज y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दैट इज y अपॉन x होल स्क्वायर, डॉट 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 an y अपॉन x रेज टू द पावर। तो हमने इस एक्सप्रेशन में से x रेज टू द पावर n यानी x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लिया तो ये बना। नाउ यू कैन सी दिस फंक्शन is a new function of y upon x or not? Yes sir. Absolutely, it's a function of y upon x, so we can write it down as x raised to the power n as it is function of y upon x. So definitely a homogeneous function always can be written as in this form. आप अगर होमोजेनियस फंक्शन होगा
तो डेफिनेटली वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एवरी होमोजेनियस फंक्शन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। अगर आप x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहे हैं तो x रेज टू दी पावर n f ऑफ y अपॉन x बनेगा, और अगर आप y की हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहे हैं तो y रेज टू दी पावर n फंक्शन ऑफ x अपॉन y बनेगा। So if any function is in this form or in this form, that function is said to be homogeneous function of degree n. If any function in this form or in this form, that function is said to be homogeneous function of degree n. And this homogeneous function is of two variable x and y. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लीजिए फंक्शन 3 वेरिएबल का है, फॉर एग्जांपल यहां कर लेते हैं थोड़ा सा। इफ फंक्शन मान लीजिए 3 वेरिएबल का है, f ऑफ x, y, z, और अगर ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री n है तो फिर इसको ऐसी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर आप x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं तो बाहर हो गया x रेज टू दी पावर n सम फंक्शन ऑफ y अपॉन x कॉमा z अपॉन x। क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कॉमन आएगी तो x डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। समझ रहे हैं? If there is a function of 3 variables, say f of x, y, z is homogeneous of degree n, then this function can be written as in this form. Have you got it? और अगर आप मान लीजिए y की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, if you are taking the highest power of y as common, then this homogeneous function of degree n can be written as x by y, comma z by y. yes, G of correct, x y comma z, yes. correct. क्योंकि x कॉमन ले रहे हैं तो x नीचे आ जाएगा, y कॉमन ले रहे हैं तो y नीचे आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपने x की हाईएस्ट पावर कॉमन ली तो x नीचे आ गया। हाँ सर। और यहाँ y की हाईएस्ट पावर कॉमन ली तो y नीचे आ गया। और अगर आप चाहें तो z की हाईएस्ट पावर भी कॉमन ले सकते हैं तो z नीचे आ जाएगा। z raised to the power n any function of x upon z comma y upon z। ठीक है? तो अगर दो वेरिएबल का फंक्शन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? नो सर। वेरी गुड। तो आज जो पढ़ाया है आप उसको रिवाइज करके आइए अच्छे से, क्योंकि अगला आर्टिकल अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। अगला आर्टिकल यूलर्स थ्योरम है और उसका प्रूफ भी है एक्चुअली। तो अगर स्टेटमेंट में देता हूं तो प्रूफ भी हमें करना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए। आज की क्लास में जितना ही पढ़ाया है आप प्लीज उसको रिवाइज करके आइएगा। एनी डाउट प्लीज आस्क। Yes, you may ask if you have any doubt. Let me check the chat box. Okay, there is no doubt in the chat box.
So guys, understood today's point? Yes, sir. Clear to everyone? Okay. Yes, sir. Okay. So please, Thank you, sir. okay, beta, okay. So please revise today's class before attending the next class. Thank you, sir. Thank you very much, all of you. Thank you very much. Take care, all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.